We are Hello, hello. live. We are live now. Yes. Very nice, very nice. So how are हमने you, इतने Vikas? लोग आई एम गुड हाउ आर यू Very आज good. आप मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करोगे Actually, on that topic, so you should speak more than I do because now, you are fully into it. So I think it will be more appropriate if I will start interviewing you in this. नहीं नहीं यू गो ऑन विद द इंटरव्यू अभी लेट मी डू माय माय पार्ट नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे फिर अभी Vikas, पता है मतलब बिफोर टीचिंग एनीवन इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले मैं अपने ऊपर हर चीज इंप्लीमेंट कर लूं एंड पोस्ट दैट मैं उस स्टेज पे आऊंगा दैट आई कैन स्टार्ट टीचिंग अदर्स विकास थॉट कि अभी तो अचानक से लाइव होने के बाद इंटरव्यू बदल गया। ये क्या हुआ? आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग हाय हेलो, हाय शुभ हेलो शुभम, हाउ आर यू? शुभम लास्ट टाइम भी था ना, और लास्ट यस टाइम में बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था। यस हु एल्स इज ऑनलाइन? I cannot see who is online, but I can see the number of people. But only if they start commenting, I will get to know अच्छा, कि कौन कौन ओके आया हुआ ओके है. ओके। सो यस, आई थिंक people should keep asking Ring. their questions as we go through this topic, Yes, yes. so that We can it's more start with a engaging. topic. Yeah, we can start with a topic, and people can start commenting, and जो भी उनके questions हैं regarding this topic, they can start asking, and then we will start. मतलब last में उनके questions भी answer कर देंगे, and we will also announce winners also. जो भी questions उन्होंने during the week पूछे, and from our chat section also. Right. Hi Divya, So hi Numa. how many winners are you selecting today? Two. Two winners. Okay, nice, nice. हाँ. So two will come live from the audience. Two from the people who have commented during the week, and Okay. for people during live chat we will see कि हम क्या कर सकते हैं depending on Okay. question. You should give one, right? ठीक है, okay. हाँ, So what we correct. will do is we will choose one from there and one from here. हाँ, correct, correct. ठीक है, right. And people who ask the funniest things. तब तो मजा ठीक है आएगा। आज जय ने ज्वाइन किया है क्या? हाँ, जय इज द फनी गाय। Yes. Hi Divya, hi Shweta, hi Arun. ठीक है, let us start with the topic which is Yes, muscle yes, mass and resistance training. तो before starting सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा what exactly is muscle mass and how it is important. absolutely, absolutely. I think जो आज का जो हमारा टॉपिक है, which is muscle mass, and of course उसका एक पार्ट है resistance training. It's very important and very underlooked. मतलब the amount of impact this topic can have is huge, and especially in a country like India, जहां पर लोगों की primarily diet एक certain way की होती है, जिसमें muscle mass को unless you are conscious वो बनना बहुत मुश्किल होता है. And if we speak about how important it is, I think people will realize कि it's important that we think about this consciously. आपने पूछा कि मसल मास के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? Why is it important? So it's Right. important for a number of reasons. One, anybody who is looking to look good for anti-aging. Number one thing, not Wow. just look good but feel better as well. So मतलब दिखने में भी अच्छा. Feel Sorry. better तो I can understand, but मतलब I can see muscle होता है, but look good में कैसे help करेगा? मतलब how anti-aging जैसे अभी आपने एकदम जैसे ही मसल का नाम आया आपने एकदम ऐसा करना स्टार्ट कर दिया. flex और करते हैं ना? यहाँ पर मैं एक मिथ को सबसे पहले क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि मसल मास एज अ सब्जेक्ट इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु वांट टू बल्क अप. It's not a subject only for people who want to become like bodybuilders. No, this is something जो कि जब हम इस चीज को पूरा समझेंगे तो हमें पता चलेगा दिस इज फॉर एवरीवन. आपका पोस्चर कितना अच्छा होता है, आप बैठे हैं तो कितना स्ट्रेट बैठे हैं, आप जब चल रहे हैं तो आपका किस तरह से आपकी मूवमेंट हो रही है बॉडी की, आपके अंदर की ऑर्गन्स की एज कैसे बढ़ रही है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, ये सब चीजों में आपके मसल मास का एक रोल होता है. एंड इट इज सीन कि एक बार जब आपका मसल मास बिल्डअप होता है सो दैट ऑल दीस थिंग्स स्टार्ट लविंग यू मोर. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आपकी हार्मोनल हेल्थ अच्छी हो जाती है. वी हैव सीन इम्पैक्ट इन सो मेनी women जिनके हार्मोनल इश्यूज हैं. सो फॉर एग्जांपल पीसीओडी, पीसीओएस,
other type of hormonal problem, mood swings, perimenopausal women, menopausal women. So many जहां पर आपके hormones are getting affected. If you work on your muscle mass, a lot of the symptoms, a lot of those hormones can get reduced. Now, ये तो हुई hormone health की बात. जब आप अपना muscle mass बनाते हो, a lot of chemicals get secreted in your body, which are loved by your brain, which are loved by your heart, and which are loved by your liver. So then it goes on to show कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का काम नहीं है. अगर आप वो केमिकल्स रिलीज करते हो अपनी बॉडी में, हो सकता है आपका डिमेंशिया में बचाव हो सके, हो सकता है आपकी हार्ट डिजीज में भी उसका इम्पैक्ट हो सकता नहीं है. सो आपकी हार्ट डिजीज में भी उसका इम्पैक्ट है, लिवर डिजीज में उसका इम्पैक्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में उसका इम्पैक्ट है. देयर आर सो मेनी पीपल. इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड डायबिटीज का जो रूट कॉज है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की वन ऑफ द बिगेस्ट करेंसी दैट यू कैन हैव इज मसल मास, skeletal muscle बोलते हैं. So basically the muscles that you have need not be the bodybuilder like muscles that you have. See, आप अगर मसल्स का एक देखते हैं, हमें हमेशा मसल्स में लाइक यू नो जैसे कोई फोटो याद आती है तो बॉडी बिल्डर की याद आती है. आप सोच के देखो, इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने जब आपसे बात की मेरा हाथ ऐसे हिला. ये जो मूवमेंट है ये भी मसल का काम है. जो स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट है, आपने देखा होगा कुछ लोग डांस करते हैं क्या बढ़िया नजाकत से डांस करते हैं, और कुछ लोग डांस करते हैं जैसे लाइक पूरा झटके मार मार के करते हैं. जो स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट होती है वो भी मसल का ही काम है. कुछ वेट लिफ्टिंग करना, कुछ आप अपनी किचन में काम कर रहे हो, सब्जियां उठा रहे हो, यू नो कुछ भी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, वो भी मसल का ही काम है. सो मसल के बहुत सारे काम है, और जब आप मसल मास को इंप्रूव करते हो तो ये सारी चीजें इंप्रूव होती है. नाउ अगर हम देखें, ये एक सबसे बड़ी मिथ है कि जिम जो है खाली यंगस्टर्स के लिए है. ऐसा बिल्कुल नहीं. बॉडी वेट वर्कआउट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज एक्चुअली फॉर एवरीवन. इनफैक्ट मोर सो फॉर सीनियर पीपल. 35 के बाद एवरी ईयर आपका अगर आप कुछ नहीं करते तो मसल मास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. पहले एक टाइम में बढ़ता है, देन वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. सो यू नीड टू वर्कआउट एक पर्टिकुलर परसेंटेज ताकि उसको मेंटेन करो, और अगर बढ़ाना है तो वो डबल के साथ करना पड़ेगा. तो जो मेहनत, सो सेम मेहनत जो 20 साल वाले को जो रिजल्ट देगी, 40 साल वाले को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 60 साल वाले को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एंड लेकिन जरूरी वो 60 साल वाले के लिए भी है, बिकॉज इफ यू सी हाउ मेनी विमेन अबव द एज ऑफ 60 दे फॉल, एंड उसके बाद उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है. ये ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वो आप गिरे, उसके बाद आपका कुछ बड़ी मसल में फ्रैक्चर हो गया, एंड आप उसके बाद बेड रिडन हो गए. नाउ व्हाई डज दैट? बिकॉज मसल्स नहीं, मसल्स होती है तो वो बॉडी को कुशन देती है. अगर आप कभी गिरे तो उसके अगेंस्ट आपकी वो कुशनिंग करती है. सो ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई जो मसल मास है, दैट इज व्हाई ये इतना क्रिटिकल है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू थिंक अबाउट. I hope I have answered your question. Yes. It's important. Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड, मतलब फर्स्ट थिंग हाउ डू आई असरटेन कि मेरा अभी मसल मास बॉडी में कितना है, एंड नेक्स्ट उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. Sure. So as far as जैसे ascertain करने के लिए, of course there are machines these days. There are smart watches जिसमें होता है, जिसमें आपको अलग अलग आंसर आएंगे, राइट. तो इसमें हमें उस एक्चुअल नंबर पे इतना नहीं पढ़ना, बट ये देखना है कोई भी एक सिस्टम ले लो और उस पे धीरे धीरे आप जो कर रहे हो उस पे ग्रोथ कितनी है. सी इट डजंट मैटर कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट मैटर्स इज ग्रोथ हो रही है कि नहीं. क्योंकि आप एक स्मार्ट वॉच में देखोगे अलग नंबर आएगा. सी जो एक्चुअल मशीन होती है जो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है वो बहुत महंगी होती है. वो 5-6 लाख की तो मशीन ही आती है, तो वो हर आदमी एकदम एक्सेसिबल नहीं होती. अगर वो नहीं भी है, कोई आपके पास छोटी मोटी मशीन है, आप उसमें ये देखोगे एब्सोल्यूट नंबर में लड़ाई मत करना किसी से कि मेरा ये है, मेरा ये है, फलाना ये है. आपको ये देखना है इस मशीन के हिसाब से मेरा आज नंबर ये था, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में वो नंबर का ट्रेंड पॉजिटिव है. सो दिस इज हाउ यू असर्टेन. अगर आप नंबर्स वाइज असर्टेन की बात करें, बट अदरवाइज आपको ये देखना है, हमें ना कोई भी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना.
राइट, कि जिसके पास मशीन नहीं है क्या वो जान नहीं सकता कि मेरी मसल्स ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जान सकता है। क्या आपको जल्दी थकान हो जाती है? राइट, आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, आपको वेट उठाने में दिक्कत होती है, आपको अपने बच्चे को उठाने में दिक्कत होती है, उसको खेल के उसको कंधे पे उठाने में दिक्कत होती है, अगर छोटा है तो बड़े वाले में तो होगी, आई अंडरस्टैंड। सो आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज आप कितने अच्छे से कर पाते हो, दैट इज अ साइन ऑफ योर मसल मास, दैट इज अ साइन ऑफ योर बॉडी। एंड बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सब चीजों में आप देखोगे किसी तरह की मूवमेंट इन्वॉल्व है, उठा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्मूथनेस है, तो ऑल दोस थिंग्स जो है ये हमारी मूवमेंट के अंदर आती है। और जैसे जैसे हम, अगर हमें दिक्कत है तो क्लियर है कि हमें इसमें वर्क करने की जरूरत है, और अगर हम सही रास्ते पे हैं तो धीरे धीरे दिक्कतें कम होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपको दर्दें नहीं होनी चाहिए। लोगों को बहुत ऐसा होता है कि जैसे होता है ना, सुबह उठते ही थोड़ी बॉडी ना अकड़ी अकड़ी रहती है, दैट्स अ साइन। और अगर आप जो राइट प्रोटोकॉल फॉलो करते हो उसके बाद वो दर्दें धीरे धीरे कम हो जाती है, दैट्स अ साइन। पहले आप एक फ्लोर चढ़ पाते थे, आज आप 2 फ्लोर चढ़ पा रहे हो, इट्स अ साइन। सो जरूरी नहीं है कि खरीदना है स्मार्ट वॉच, वो नंबर्स लेने हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना है। हमें इतनी सारी चीजें और इतनी फैकल्टीज भगवान ने दी हुई है कि हम घर बैठे बैठे फ्री में सब कुछ असर्टेन कर सकते हैं। तो इसी दिस दिस इज इज वेरी हाउ गुड वी आइडिया। सॉरी। जैसे आपने बताया कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो एंड हाँ, देन जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन दैट नंबर। क्योंकि ऐसा नहीं है यार यू हैव टू गो फॉर दैट, कोई 50,000 का प्रोडक्ट है, इवन एक स्मॉल वॉच जो भी आती है 2-3 हज़ार की भी जो सबके पास आजकल होती है, उसमें भी दैट विल शो यू योर मसल मास एंड योर फैट परसेंटेज। आप उसी पे इम्प्रूव करते जाओ। इट डजेंट मैटर कि वो एग्जैक्ट नंबर है या नहीं है, पहले 34 था, 35 आ रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है आपका मसल मास, दैट इज फेयर इनफ। करेक्ट। इज माय वॉइस ऑडिबल विकास? यस, क्लियरली। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे आते हैं। जैसे अभी आपने बात की दैट फॉर द पेन जो होता है हमें जो मॉर्निंग में उठते हैं, बट नॉर्मली तो ऐसा रहता ही है, हम जिम जाते हैं एंड मसल में वी हैव हर्ड दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग योर मसल्स एंड देन बिल्डिंग इट। तो आई यस। थिंक पेन तो रहता ही होगा, तो मतलब इज इट लाइक समथिंग कि वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है? सो इसमें देखो, कुछ पेन अच्छे हैं, कुछ पेन अच्छे नहीं है। मैं पहले अभी जिसकी बात कर रही थी वो ऐसा पेन था जो आपको जनरली है, कुछ किए नहीं है, सुबह उठ रहे हो तो परेशानी है, मैं उस पेन की बात कर रही थी। हाँ, मैंने अगर आज खूब सारा वर्कआउट किया है तो मुझे कल नहीं तो परसों, डिपेंडिंग अपॉन सबकी बॉडी अलग होती है, थोड़ी सी सोरनेस हो सकती है। नाउ दैट्स नॉट रियली पेन, दैट्स सोरनेस, और वो बॉडी की रिकवरी और ग्रोथ के प्रोसेस में आती है कभी कभी। अगेन वो टिपिकली तभी आती है, जैसे कि हम और बात करेंगे कि ट्रेनिंग में कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको। सो टिपिकली जब आप अपनी थोड़ी सी लिमिट के आसपास आते हो तब वो पेन आनी स्टार्ट, विच इज फाइन, दैट पेन इज परफेक्टली फाइन। वो पेन जो कि बिना कारण की आ रही है या आके जा नहीं रही है, दैट इज पेन विच इज प्रॉब्लम एरिया। मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया और शाम को मैं जस्ट, मेरे को ना 6 बजे ही थकान चालू करती है। नाउ दिस इज अ साइन कि मेरी जो वेरियस मसल्स हैं इन द बॉडी, सी मसल्स में हमेशा, जैसे अभी आपने ऐसे किया ना, सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप नहीं है, हार्ट भी मसल है, अंदर हमारे शरीर में दुनिया भर की अलग अलग मसल्स हैं, कुछ दिखती है एकदम से, कुछ एकदम से नहीं दिखती। सो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम एंड ट्राइंग टू इंक्रीज आवर मसल मास, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग एवरी मसल इन द बॉडी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दैट मसल के बारे में जब भी हम बात करते हैं सबसे पहला वही आता है प्रोटीन। सो इफ यू कैन टॉक अबाउट प्रोटीन्स। श्योर, डेफिनेटली मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। प्रोटीन में, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ आवर डाइट एज वेल, एंड मोस्ट ऑफ द, जैसे होता है ना, मार्केटिंग गिमिक्स एंड मार्केटिंग एंड मीडिया इज अराउंड a lot of those myths as well. So इसमें दो राय नहीं है कि प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन के अंदर जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, a lot of those are required in building muscles in the body, in building various hormones, in building various components and catalysts in the body. तो जरूरी है प्रोटीन, एंड आपको इंश्योर करना है
कि आप हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में जब भी आप मील लें, जिस वक्त भी आप मील लें, आपका कोशिश होनी चाहिए कि देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड. नाउ प्रोटीन जो है ये थोड़ा सा अंडर, इट्स नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड सब्जेक्ट आई थिंक. क्योंकि क्या होता है हमारी, जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी आप देखते हो उसमें लिखा होता है 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम प्रोटीन. ना प्रोटीन ना एक प्रोटीन नहीं है, ये 20 अमीनो एसिड है, जिसमें से 10 जो है वो, सॉरी 9 जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड है. ना अब आपको वो 15 ग्राम तो जरूर था, लेकिन इसमें से कौन सा कितना था, क्या वो रेशियोज ठीक थी? बिकॉज जो नॉन असेंशियल है वो तो बॉडी बना लेगी, लेकिन जो असेंशियल वाले हैं वो कितने हैं, और आपको प्रोटीन कॉम्बिनेशंस जो है उसको कैसे समझना है. कैसे राजमा जो है अकेले वो इनकम्प्लीट है, लेकिन जब वो ब्राउन राइस के साथ मिल जाता है वो कंप्लीट हो जाता है. सो आपको ये कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है. और प्रोटीन एज अ सब्जेक्ट पे आई थिंक वी नीड वन फुल पॉडकास्ट, बिकॉज वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. बट लाइक जस्ट समराइजिंग इन अ क्विक आंसर वुड बी, आपको अपनी हर मील में ये देखना चाहिए कि क्या इसमें प्रोटीन है कि नहीं. स्पेशली एज इंडियंस हमारी मील में कार्बोहाइड्रेट्स की कोई कमी नहीं होती. आई एम नॉट सेइंग कार्बोहाइड्रेट इज बैड, तो अब इसको दूसरी तरफ ही लेके चले जाना, लेकिन क्योंकि हम इंडियंस हैं, रोटियों की हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं, राइट? ब्रेड की हमारे यहाँ पे कोई कमी, ये तो आ ही जाता है. मतलब ये तो अगर आप बोलोगे ना लो कार्ब, तो भी वो 1/3 ऑफ द प्लेट से ज्यादा ही होने वाला है. हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, बैलेंस में होने चाहिए. और स्पेशली अगर आप मसल बिल्डिंग जोन में जा रहे हो तो आपको प्रोटीन के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए. और हम जितना भी एक्स्ट्रा दे दे हमारा थोड़ा सा कम की तरफ रहता है, बिकॉज हमारी डाइट का स्ट्रक्चर है. तो इसके लिए यू हैव टू बी कॉन्शियस अराउंड प्रोटीन, यू हैव टू बी कॉन्शियस. एंड खासकर अगर आप अपनी प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट मील ऑफ द डे में अगर हैवी प्रोटीन है, दैट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डे. तो अगर आपकी जो दिन की शुरुआत है उसकी ऐसी सोच है जो कि इजिली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन्स है, कुछ ऐसा आप खा रही हैं मॉर्निंग में, तो वो पूरे दिन का आपका बेस अच्छा सेट कर देगा. तो वो प्रोटीन आपको जरूर लेना चाहिए. रही बात पाउडर्स की, बिकॉज आई सॉ सम पीपल आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट पाउडर्स. नाउ देखो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पाउडर्स, बट आई एम नॉट सेइंग कि क्या होता है उनके यूज केसेस नहीं है. बट पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ फैक्ट्री. दैट इज माई जनरल थिंग. नाउ क्योंकि इसके अंदर ना थोड़े से लॉजिक है. जैसे जब हम वो एक स्कूप प्रोटीन का लेते हैं, उसमें सीधा 20 ग्राम प्रोटीन होता है. ना अगर हम गाय का दूध देखते हैं तो उसमें 1 लीटर के अंदर आपका 30 ग्राम के आसपास आ रहा है. तो क्या उस 20 ग्राम प्रोटीन को आप 700 ml पानी में पी रहे हो? हम तो छोटे से ग्लास के अंदर उसको घोल के फटाफट पी जाते हैं. ठीक, क्या होता है हमें ये समझना होगा कि नेचर में जो चीजें आती है, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, वो हीरो के साथ उसकी सपोर्टिंग कास्ट साथ में आती है. सो नेचर में जो चीजें हैं वो प्रोटीन के साथ उसको पचाने वाली आइटम भी साथ में मिलेगा. खासकर आप देखते हैं बॉडी बिल्डर्स के अंदर एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है लेटर, लिवर खराब होने की या किडनी खराब होने की. वाई? बिकॉज आप प्रोटीन का इतना ओवरलोड कर लेते हो, और वो भी आर्टिफिशियल सोर्सेस से, और उतने हम लोग उतना फाइबर और उतना पानी नहीं लेते हो साथ में. सो देन व्हाट हैपेंस इज कि वो आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है. तो वो चीज का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए. बट लेकिन अगर आपको एक टेम्परेरी आपका कोई इवेंट आ रहा है, यू आर अ बॉडी बिल्डर, थोड़े दिन के लिए आपको लेना है, दैट इज परफेक्टली फाइन. बट माई सेंसेस की कोशिश करनी चाहिए आप जितने नेचुरल सोर्सेज से ले. जैसे अगर आपको असली दूध मिलता है, तो दूध इज अ कंप्लीट प्रोटीन, राइट? तो आपको पनीर या दही या इन सब चीजों को भी अगर आप लेंगे, एंड देन वेरियस अदर सोर्सेज आते हैं, राजमा चावल में वो कंप्लीट हो जाता है, दाल चावल में कंप्लीट हो जाता है. सो कई सारे, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन द कॉम्बिनेशंस कि which are the sources, and of course we can make a एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के ऊपर हम बात करें, ताकि लोग उसको अपनी हर मील में कुछ कुछ को इंक्लूड करना स्टार्ट करें. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडरलुक्ड थिंग्स इन आवर डाइट. एंड मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये है दैट what is the body's requirement of protein? अगर suppose I am 80 kgs and
मतलब एक्टिव डे रहता है मेरा, तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए मुझे दिन में? सो जो RDA होता है दैट इज समथिंग लाइक 0.8 अराउंड 0.8 ग्राम पर पाउंड, सो दैट वुड बी लाइक जैसे अगर आपका 80 kg है तो दैट 1.4, विल गो टू अबाउट 130 और सो so about 120 130 grams. लेकिन अभी इसमें नंबर्स में ना जाते हुए व्हाट आई लाइक टू लुक मोर इज कि एब्जॉर्बेबल कितना है। कि कई बार ऐसा भी होता है हमने प्रोटीन इतना लिया तो सही, बट कितना डाइजेस्ट हुआ दैट्स अ डिफरेंट बॉलगेम ऑलरेडी। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए आपको बॉडी में कुछ वेरियस अदर फैकल्टीज भी चाहिए जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, स्पेशली अगर आप अननेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले रहे हो। अगर आप नेचुरल सोर्सेज ले रहे हो तो उसमें मोस्टली साथ में आएगा, बट अगर आप अननेचुरल सोर्सेज ले रहे हो तो आपको उतने फाइबर, उतना लिक्विड, ये सब चीजें भी साथ में लेनी पड़ेगी। सो आपको ये देखना है कि जब आप अपनी डाइट चेंज करते हैं, क्या आप एक जो हमने ग्रो, आपने बोला था कि असर्टेन कैसे करेंगे कि हमारे मसल मास ग्रो हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है, हमारी स्मूथनेस बेटर हो रही है। लाइक हम जो काम पहले करने में, मैं पहले 5 किलो उठा पाती थी, अब मैं 15 किलो उठा पाती। So that is a sign you are on the right track and you are not getting too fatigued in that process. So अगर आपका जैसे आप वर्कआउट्स कर रही हैं और आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, आपको अपनी खाली सी एक जिम में ग्रोथ नहीं होती, आपकी लाइफ में जो आप पूरे दिन में करते हैं, क्या आपको वहां पर इम्पैक्ट दिख रहा है? क्या आपका पोस्चर इज गेटिंग बेटर? क्या आपका जो पहले आपको इश्यूज होते थे, क्या शाम को थकान एंड ऑल दोस थिंग्स, आर दे गेटिंग बेटर? Are you able to do more physical work that compared to what you used to do earlier? All those are the signs, and as long as वो आगे जा रही है, I won't worry too much about numbers. लेकिन ये है कि आपकी हर मील में you have to ensure कि 1/3 of the calories जो है minimum वो इससे आ रही है। मतलब जैसे जब हम अपनी प्लेट सजाते हैं तो उसमें ये वाली मतलब लाइक so I should be able to see good amount of protein and good amount of fat as well. मेजोरिटी ऑफ द पीपल में गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो खूब सारा होगा, फाइबर का नामो निशान नहीं होगा या बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। प्रोटीन का थोड़ा बहुत, जरा सी दाल आधी कटोरी हुई तो हुई, लिटिल बिट। और दाल अगेन उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो प्योर प्रोटीन है, उसके अंदर कार्ब्स भी है और चीजें भी है। तो कहने का मतलब है इस चीज को कॉन्शियसली सोचना बहुत जरूरी है। एंड जैसा कि अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें, बिकॉज आई सॉ लाइक समबडी आस्क्ड दैट क्वेश्चन एज वेल, सो देयर आर वेरियस नेचुरल सोर्सेज, लाइक जैसे कि आपका एडामामे है, टोफू है, पंपकिन सीड्स है, आपके स्प्राउटेड नट्स एंड सीड्स हैं, आपका लेंटिल्स हो, दुनिया भर के जो आपकी दालें हैं स्प्राउटेड। खासकर स्प्राउटेड में क्या होगा, आपको लगेगा कि प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 4 टाइम्स बेटर हो। तो आपने 20 ग्राम कम एब्जॉर्प्शन वाला लिया और लेट से आपने 7-8 ग्राम बढ़िया एब्जॉर्प्शन वाला लिया, हो सकता है आपको दोनों में इम्पैक्ट सही मिले। पनीर है, कर्ड है, इन सब में तो है ही है प्रोटीन। एंड डिपेंडिंग अपॉन अगर आप नॉनवेज लेते तो अगेन देयर आर मेनी। अच्छा, आपने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए व्यूअर्स के लिए, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स वेजिटेरियन हैं, तो क्या खा सकते हैं टू, मतलब वो आपने सारा कवर ही कर लिया। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हाउ डज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स? सॉरी, से इट अगेन। अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कि वो कैसे हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। ओके, सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पहले ये देखते हैं है क्या, राइट? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कुछ आपके अगेंस्ट पुश हो, लाइक दैट। सो लाइक वेट लिफ्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप जब बॉडी वेट से करें, चाहे आप लाइट वेट से करें, चाहे आप हेवी वेट से करें, दैट्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ ये काम कैसे करता है, जैसे हम देखते हैं जिन भी लोग हैं जो कि जिम में वर्कआउट करे हैं, या लेट्स से इवन अगर आप स्टेयरकेस भी बहुत अच्छे से चढ़ रही है, आपने 10 फ्लोर चढ़ रहे हो, 12 फ्लोर चढ़ रहे हो एंड सो ऑन, यू विल फील कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम थोड़ा बर्न आता है। तो जैसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेट्स से अगर हमने बाइसेप कर्ल ली, राइट, तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि देयर आर अ फ्यू कांसेप्ट्स एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। कि एक है आपका वन रेप मैक्सिमम कितना है। सो कितना ऐसा वेट है जिसमें आप सिर्फ एक ही रेप कर पाओगे, उसके आगे नहीं कर पाओगे। सो उसको आपने नोट कर लिया। Now majority of your reps have to be between around 50 to 70% of that weight. Okay? इसमें आपको, और आपको कितनी रेप्स करनी है,
Should I do 5? Should I do 8? Or should I do 10, 12 or 15? Now again, it depends on the goal. If my goal is building stamina, I will go towards 10 के ऊपर वाली reps. If my goal is building strength and building more ये वाली muscles, डोले शोल्डर वाली, so then I will go towards lesser number. लेकिन आपको ये देखना है, क्योंकि ये वेट सबके लिए अलग होगा, आखिरी की जो 1-2 रेप्स है वो मुश्किल लगनी चाहिए. आखिरी की जो 1-2 रेप्स है उसमें हल्का सा जैसे ना वो बर्न आता है, वो आना चाहिए ना. कई बार लोग सोचते हैं अरे ये बर्न आ रहा है मतलब अच्छी बात नहीं, यहाँ पे रुक जाओ. ऐसा नहीं है. वो बर्न जो आता है वो बॉडी एक ना केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसके कारण आता है, और वो आपकी मदद करने के लिए आता है. वो मदद कैसे करता है? वो जो पर्टिकुलर केमिकल होता है वो आपकी बॉडी में जैसे जब बहुत आपने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया हुआ है ना, इतना वेट लिफ्टिंग का जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है, वो उसको ठंडा करने के लिए आता है, वो एसिडिटी को कम करने के लिए आता है. ये जो केमिकल निकलता है इसकी, जो मैंने पहले बोला था, हार्ट, ब्रेन और लिवर और हॉर्मोन्स, इन चारों से इसकी दोस्ती है. तो जब आपको आखिरी के 2 रेप करते हो, पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सारी रेप पहली रेप से ही आपको परेशानी होगी. वैसा वर्कआउट नहीं, दैट इज टू मच. जैसे अगर मैं लेट्स से 1 रेप मैक्सिमम मेरा है लेट्स से 10 kg, तो मैं अगर जैसे 6 kg पे करती हूँ, तो बिटवीन 50 to 80% के बीच में मैं करती हूँ, और अब मैंने उसके ऊपर किया लेट्स से 7-8 रेप्स. आखिरी की 2 रेप में मुझे लगना चाहिए. अगर बहुत इजी है, करे जा रहे हो कुछ पता ही नहीं चलता, उससे कुछ असर भी नहीं हो रहा. So don't even waste your time. थोड़ा सा एंड में पता चलना चाहिए. So कई बार लोग कहते हैं कि जिम में जैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शरीर को ना थोड़ी मुश्किल चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि होता क्या है, आपकी मसल नहीं बनाती, आपका ब्रेन आपकी मसल बनाता है. और ब्रेन में आप ऐसा सोच सकते हो, एक बॉस बैठता है, वो ना नॉर्मल छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता. तो जब तक आप ऐसे कुछ छुट-पुट काम कर रहे हो, जरा बहुत डांस वांस करके आ गए हल्का फुल्का, उसको बॉस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है. बॉस तक इंफॉर्मेशन कब पहुंचती है? जब कुछ बड़ा काम, उसको एकदम लगता है ओ माय गॉड माय टीम इज नॉट रेडी. देन वो अरेंजमेंट करता है, और वो आपकी नेक्स्ट टाइम जब आपकी जो रिकवरी पीरियड होता है, वो बॉस पूरी एक्टिवेट कर देता है चीजें, जिससे आपकी मसल ग्रोथ होती है. सो ब्रेन को सिग्नल पहुंचना बहुत जरूरी है. And that is why one of इसमें that's why कहते हैं that rep till you fail, कि जब तक आपके लास्ट रेप में इतना वो ना हो जाए कि कोई आपके सर पे गन भी रख के खड़ा है तब भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप आई डोंट नो उस स्टेज तक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. बट नॉर्मली यही कहते हैं कि लास्ट सेट तो आपका ऐसा होना चाहिए कि बस आपका मतलब गोली भी रखी है ना सिर पे तो भी नहीं कर पा रहे आप. So that's why आपकी तब आई थिंक मसल ब्रेक होती है. I am not a big fan of going till failure. See, what I like more is as soon as the muscle starts burning. See, burn आपको पता चल जाएगा, वो दर्द होती है वहाँ. Exactly उसी मसल पे जिसको वर्क कर रहे हो, वो बर्न के आगे 2 से 3 रेप और. पूरे फेलियर में इंजरी का रिस्क है. And that's why I'm not a big fan, because इंजरी में क्या दिक्कत होती है, एक बार इंजरी हो गई पूरा 6 महीने के लिए जिम से आउट. So I am not a big fan. What I like is कि आपको बर्न फील हुआ, बर्न के आगे 3 रेप. तो कहने का मतलब है, जैसे अगर मैंने टोटल 1 घंटा वर्कआउट किया, तो उसमें से ना 6 से 7 मिनट ऐसे होने चाहिए जो मेरी लिमिट के थोड़ी सी दूर है. लिमिट मतलब नॉट लाइक गन वाला लिमिट, बट वहां पे बर्न ज्यादा हो गया. आखिरी की जैसे कि सपोज करो आप लेग प्रेस कर रहे हो, शुरू के 3-4 से एकदम इजी है, उसके बाद वाले में ओ माय गॉड, आखिरी में 2 जो होने हैं उसमें आपको दर्द होना चाहिए. और दर्द मतलब एक होता है कि that's why actually इसके अंदर one of the not so talked about thing in gym is the importance of attention. मतलब जिस मसल पे काम हो रहा है ना, क्योंकि बनाना ब्रेन में है, इस बात को ध्यान रखना, मसल में नहीं बनाना. मसल अपने आप को नहीं बना सकती, वो ब्रेन में जो बॉस बैठा है, जब वो डिसाइड करेगा ना उसको बनाना है, और यहाँ पे मुझे, बिकॉज मसल बनाना आसान काम नहीं है, बहुत पैसा लगता है उसको. तो बॉडी का जो होता है ना उसके अंदर, मतलब पैसा एक तो जिम जाके भी लगता है, बॉडी के बहुत रिसोर्सेज लगते हैं. और बॉडी क्या करती है हमेशा ना,
सबसे सस्ता काम करना चाहती हूँ, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट में जो चल जाए। तो अगर आप मेहनत ही नहीं करते हो ज्यादा तो उसमें नहीं इतना बॉदर करना। आप मेहनत करोगे, बॉस तक खबर पहुंचेगी, तो वो फिर उसके लिए अरेंजमेंट करेगा। तो वो आपको देखना है कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस के अंदर पूरी रहनी चाहिए। आपने एक सुनी होगी माइंड मसल कनेक्शन। नाउ ये इसलिए जरूरी है, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, करे जा रहे हैं ताकि मतलब टाइम पास हो जाए, बस आपको इतना असर नहीं मिलेगा। आप जिम में बहुत लोग देखोगे 1 साल से कार्डियो पे भागे ही जा रहे, ट्रेडमिल पे भागे ही जा रहे, वजन कहीं नहीं जा रहा है, ध्यान लगाना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है। आपको जैसे तो इसका रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जैसे हम हेडफोन लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो ना करें वैसे? सी थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कि आपका कनेक्शन लॉस हो गया। सी अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए अपनी बाइसेप पे। आप अगर ट्राइसेप डिप कर रहे हो तो ध्यान लगा होना चाहिए ट्राइसेप पे। उससे Yes. क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ले लोगे। सी आपकी मर्जी है, लगाना है लगाओ। आपको टॉर्टोइज की तरह चलना है, टॉर्टोइज की तरह चलो। थोड़ा सा तेज चीता की तरह चलना है तो फिर देखो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल इज। बस किसी तरह से थोड़ा बहुत, लाइक मैं अभी 10 पे बैठा हूँ, 100 में से 10 पे बैठा हूँ, 12-13 तक आ गया, मेरी हैप्पी 20% इंप्रूवमेंट है। बट इफ योर गोल इज मैं 100 में से 70 पे ऑलरेडी हूँ, मुझे 90 का टारगेट है, तो मुझे हर स्किल को उठाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एंड क्यों मैंने ये बोला कि इसमें माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनफैक्ट माइंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। आप जैसे जो मैंने बताया था, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आपका जो सेल्स ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन पहुंच गई, तो वो जो रिलीज होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल जो कि मसल ग्रोथ में मदद करते हैं, दे आर 20 टाइम्स हायर। सो अब क्या है, आपने गाना लगा रखा है, ध्यान कहीं और है, या चैटिंग करते करते कर रहे हो, ब्रेथ वर्क पे तो आपका ध्यान हो नहीं सकता। ब्रीदिंग एंड माइंड उस मसल पे जब लगते हैं ना, तो आपको ऐसी ऐसी मसल्स अपनी बॉडी में नजर आएंगी जो तो आपने किसी साइंटिफिक लिटरेचर में भी नहीं देखी हो। आपको समझ आएगा भाई, कोर होती है, कोर एक बड़ी मसल होती है, थोड़ी अपर है, थोड़ी लोअर, थोड़ी और लोअर। आप ध्यान लगाओ, लाइक आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। हैंड स्टैंड किया हुआ है, हैंड स्टैंड में किस तरफ लेग टिल्ट हो रही है, आपकी लोअर एब्स में भी तो 4-5 कंपोनेंट दिखेंगे, कौन सा पिक्चर में आ जाता है। कभी ये बचाने आएगा बैलेंस करने के लिए, कभी ये बचाने आएगा। तो आपका अगर ध्यान लगा होगा ना, आपको कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर ध्यान नहीं लगा तो चलो हम स्नेल पे इस पे रेंगते रेंगते चल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो डिपेंड करता है एक क्या, अगर मुझे अपनी जिंदगी में भाई ना ठीक है जी सब कर रहे हैं जिम, मैं भी जाके करूंगा, गाने वाने सुन, देखो अगर शुरू में थोड़ी आदत डालने के लिए गाने वाने सुनने सुन दो, नहीं तो ऐसा नहीं है। देखो ये ना ट्रेनिंग की बात होती है माइंड की। जैसे अभी हमारा जिम है, गाने चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड में गाने चलते हैं, और लेकिन ध्यान भी लगा होता है मसल पे। सी एनीवे जब आप रेप्स करते हो, 6-7 रेप तो मारने हैं, कितनी देर लगती है उसमें, 40-50 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद रेस्ट लेते हो 2 मिनट, क्योंकि अब इतना हैवी सेट मारे हो, फिर दोबारा से करोगे तो 2 मिनट गाने सुनो बढ़िया से। और उसमें भी अगर आपका ध्यान लगा होगा ना, आपको समझ आएगा उसके कितनी देर बाद बर्न रहा, फिर आप फील होगा, वो फिनिश हो गया। तो ये जो ध्यान लगाने वाला काम है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई जो यूवैप का हमने जिम प्रोग्राम डिजाइन किया है, उसमें प्राणायाम एंड मेडिटेशन का भी रोल रखा है। बिकॉज इफ योर माइंड इज शार्प यू कैन गेट मच मोर रिजल्ट्स वेरी क्विकली। आपको वो मसल्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और आप अपना, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन की बात की थी, आपने बात की थी कि मैं देखूंगा कैसे। आप ऐसे देखोगे अपने माइंड को शार्प कर, आप देखिए आपको समझ आ जाएगा, आज मैंने ये गलत खाना खाया, मेरे हाथ में कुछ फीलिंग आ रही है। आपको क्या लगता है, जैसे कि आयुर्वेद जब लिखा गया था, जब आयुर्वेद जब सारा उसका डिस्कवरी हुई थी, कौन से तब साइंटिफिक जर्नल थे जो ऋषि मुनियों ने और जो बड़े बड़े लोगों ने लिखा, तब कौन से साइंटिफिक जर्नल थे? कई सारी चीजें हैं, चलो ऋषि मुनि तो एक जगह हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एंसेस्टर्स भी अच्छी करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स सही वो नॉलेज थी, वो कैसे थी? आपकी अटेंशन थी उस काम में।
एंड दैट इज व्हाई अटेंशन को जब आप डेवलप कर लेते हो ना, जिम तो एक पार्ट है, आपकी लाइफ के बहुत सारे पार्ट बहुत छोटा है। एंड जिम के लिए इट्स अ कंपल्सरी थिंग, बिकॉज बनाना दिमाग ने, आई एम टेलिंग अगेन, मसल ने मसल को नहीं बनाना, दिमाग ने मसल को बनाना है। दिमाग की एंगेजमेंट वेरी वेरी जरूरी। एंड ब्रेथ वर्क, तो मेक श्योर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देना है। आप ये देखोगे, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपने इनहेल किया, लेट से उसके बाद जब एक्सहेल कर रहे, अगर मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट ले रही हूँ तो मैं डबल एक्सहेल करती हूँ, एंड आप देखोगे उससे आपका पावर बढ़ जाता है। सो ब्रेथ वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन बिना टेंशन के इतना समझ नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, अटेंशन लगाओ जिस मसल पे काम कर रहा है, ताकि माइंड की उसके साथ दोस्ती होनी चालू हो, और वो होगी अपने आप आगे एक एक करके सब चीजें लाइन में आएगी। बिकॉज ब्रेथ, जैसे मैंने बताया, 20 टाइम्स का डिफरेंस है, ये कंप्लीट शॉर्टकट है। मेडिटेशन एंड प्राणायाम आर शॉर्टकट टू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आपको जिम में वर्कआउट करना है, आपको पैसा कमाना है, ऑफिस में काम करना है, जो मर्जी करो, मेडिटेशन और प्राणायाम में ऐसे शॉर्टकट मिलेंगे ना, आप दूसरे बंदे घिस घिस के थके पड़े, घिसे जा रहे, डेली घिसो, ठीक है। एक वो होगा और एक बंदा स्टार की तरह काम करेगा, कूल, काम सारा हो रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। और क्योंकि उसको वो दिखेगा, उसको वो नजर आएगा, जो बाकी को नजर करने में ना इतने चीजें देखनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई, जैसे अगेन यू नो आई एम जस्ट मूविंग बैक टू मेडिटेशन एंड प्राणायाम, इवन जिम के सेशन में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट, एंड आई फील कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ये करके देखना चाहिए। इनफैक्ट यू विल फील मच मोर काम आफ्टर डूइंग अ हेवी लिफ्टिंग जिम से। आप सोचोगे ये कैसे हुआ, यहाँ तो सब बढ़ना चाहिए था, एग्रेशन आना चाहिए था, शांति से कर, हैवी बट शांति। इसी में मैंने एक हुबरमैन का इंटरव्यू देखा था दैट रिगार्डिंग दिस, जो आप ब्रीदिंग टेक्निक में कह रहे हैं डबल पुश किया या फिर उसमें किया, तो ही ऑल्सो सेट कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एंजाइटी अटैक आ रहा है, यू कैन व्हाट यू कैन डू इज आप 2 बार सांस लीजिए एंड देन एक सिंगल छोड़िए से, हाँ, ऐसे करके करेंगे तो देन इमीडिएटली यू विल सी दैट आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। करेक्ट। तो सेम वे जिम में भी जैसे आपने बताया, आई एम बिग फैन ऑफ हुबरमैन, एंड जो वो साइंटिफिक रिसर्च जिस तरह से देते हैं, सेम पे जैसे एक जगह आपके हुबरमैन है पूरी साइंटिफिक बैकिंग के साथ, दूसरी तरफ हमारे इंडिया में बहुत सारी नॉलेज है जो छुपी पड़ी है। सी, आज की डेट में हमें साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी अटेंशन नहीं है। आप सोच के देखो, सारे प्राणायाम, दुनिया भर के प्राणायाम बने हुए हैं हमारे कल्चर में, वो कैसे बने थे? तब तो कोई बॉडी की ऑब्जर्वेशन के तो कोई इस तरह के हाईटेक टूल्स भी नहीं थे, कौन से एमआरआई, कौन से सीटी स्कैन थे तब, लेकिन सब टूल्स तब के बने और अभी तक ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंशन थी। उनको दिखता था ये जरा सा चेंज हुआ, बॉडी में कहाँ कहाँ बदला। सी, आप बोलते हो मेरे पेट के एरिया में गड़बड़ हुई, पेट के कौन से एरिया में गड़बड़ हुई? लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किस तरह की गड़बड़ हुई? इफ माय ऑब्जर्वेशन इज दैट टाइप, मुझे किसी साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दैट इज हाउ हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो ऑफ कोर्स हुबरमैन एक जगह है, बट एट द सेम टाइम हमारे कल्चर में भी वो चीजें हैं जो कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, बट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आज उनके ऊपर जब साइंटिफिक रिसर्च होती है, लाइक दैट डे आई वाज रीडिंग ओम चैंटिंग के इफेक्ट्स के ऊपर। नाउ जब ओम चैंटिंग का साइंटिफिक रिसर्च थी, ऑब्जर्वेशन थी, एग्जैक्टली ओम बोलते हुए मेरी बॉडी में किधर किधर, अ पे किधर, ऊ पे किधर और माँ पे किधर क्या इम्पैक्ट होता है, वो रिसर्च थी, वो अटेंशन थी। आपको कहीं बाहर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा है, आपको फील आती है, वाइब्रेशन पूरी आपकी बॉडी में हो जाती है जब आप उसको ओम को चैंटिंग करते हैं। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, उसमें आपने यू सेड एक आपने जैसे इंजरी की बात की, एंड देन यू सेड जो आपका 1 मैक्सिमम रैप जो आप करना चाहते हैं वो आप आइडेंटिफाई, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूं? बिकॉज अगर मैं फर्स्ट टाइम जिम जा रहा हूं, तो अगर मेरी कैपेसिटी इट कुड बी लाइक 100 केजीज, कुड बी लाइक 150 केजीज, तो इंजरी का चांस रहेगा। तो हाउ डू आई असर्टेन कि मेरा 1 रैप मैक्स कितना रहे? सो शुरू में स्पेशली फॉर बिगिनर्स, वो लोग शुड स्टार्ट विद लोअर वेट्स। एक बार कम से कम आप 1-2 महीना जिम जाके रेगुलर हो जाइए। सी, बिगनर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं 1 रैप मैक्सिमम कैसे निकालूं, बिगनर के लिए ये प्रॉब्लम होती है मैं सुबह उठूं कैसे।
मैं जिम तक पहुंच चुकी, कितने पाँव घसीट के पहुंच गया तो मैं निकलने के लिए भाग जाऊँ वहां से। सो बिगिनर की प्रॉब्लम अलग है। तो बिगिनर के लिए यू विल नॉट रेकमेंड कि वो सीधा हैवी लिफ्टिंग में आ जाए। इनफैक्ट बिगिनर जो है शुरू में लाइट वेट से शुरू करें, मे बी बॉडी वेट्स के साथ शुरू करें, बिकॉज एक्चुअली बॉडी वेट भी लाइट नहीं होता, समटाइम्स यू हैव टू स्टार्ट लाइट वेट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी गाइडेंस के अंदर, सी एज लॉन्ग एज आप सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो फिर भी ठीक है कि कोई इतना नहीं देख रहा, फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो एक्सरसाइजेस हैं इट्स फाइन। बट अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अगर आपके पास एक अच्छे ट्रेनर की या किसी ऑनलाइन क्लासेस जैसे यूएप में है तो वहां पर जो टीचर्स हैं वो आपको देखें, आप अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि टीचर आपको देखे, आपके पोस्चर को करेक्ट करे। एंड वेट ट्रेनिंग खासकर जो है वो तो एकदम गाइडेंस के अंदर हो, हैवी वाली तो दैट विल बी बेस्ट, लाइट वाली फिर भी ठीक है बट हैवी वाली के लिए इट्स बेटर टू डू इट एट सम। यस, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक स्पॉट होना चाहिए सो दैट इमीडिएटली अगर कोई वेट होता है तो समबडी कैन कंट्रोल इट। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि पहले कुछ क्लासेस आपने ट्रेनर के साथ वन ऑन वन ले ली, जस्ट टू नो योर वन रेप मैक्सिमम, जस्ट टू नो योर बॉडी की जो यूनिक चीजें हैं कि भाई गर्दन में दर्द है कि बैक में दर्द है, जो भी आपकी यूनिक चीजें हैं। एक बार क्या है कि आपने वो समझ लिया 2-3 क्लासेस में, उसके बाद फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी अगर ट्रेनर नहीं भी है तो मैंने कर लिया, बिकॉज सी इफ यू लिफ्ट वेरी हैवी चांस ऑफ इंजरी इज देयर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू डू नॉट गो टिल योर 100। 100 का मतलब है ट्रेनर आपके साथ खड़ा हुआ है और उसने एक करवा के दिखाया आपको, और अगर आपसे छूट गया तो पकड़ने के लिए वहां पे दे वर्क विद यू एंड दे आर वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वर्किंग इन द जिम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जैसे मैं कोई वीडियो देख के अगर मैं कर रही हूँ उसमें इंजरी के इतने चांसेस नहीं होते, दूसरे वाले में जो लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग हो रही है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर उसकी हम बात करते हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक ट्रेनर के साथ ही काम करें सो दैट वो आपकी दे कैन एनालाइज योर बॉडी, देन आपकी एक्टिविटी कैसी है, दिन में आप बैठे रहते हैं या फिर बाहर घूमते रहते हैं, एंड देन दे कैन डिफाइन ए प्रोग्राम एज पर योर रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। So guys, keep on asking your questions. We are taking just last question here and then उसके बाद हम आपके सारे questions कमेंट्स वाले स्टार्ट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन जो आता है इसमें मसल बिल्डिंग के टाइम, दैट इज कि वेदर जिम जाना जरूरी है या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, तो किस में ज्यादा हम कंसंट्रेट करें? So like I think it depends on what you like. See if I am very busy, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं तो मैं अच्छा सा कोई वीडियो HIIT का लिया जिसमें बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं, यूट्यूब के कई सारे वैसे वीडियोस हैं, मैं उसमें कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी आपको ये देखना है आप अभी कहाँ खड़े, आपको ये नहीं देखना परफेक्शन क्या है, परफेक्शन सबके लिए अलग अलग है और परफेक्शन तो खैर कभी आती है। आपको ये देखना मेरा अप ट्रेंड चालू है, एक ये है यू आर वेरी बिजी, आपको ऑफिस पहुंचना है 8 बजे, आपके घर में बच्चे हैं, खाना भी बनाना है, तो आपके लिए अच्छा है एक बार आपने कुछ जैसे कि आपने घर पे ही कुछ ऑनलाइन क्लास कर ली या वीडियो देख के आपने उसको कर लिया, सो यू कैन स्टार्ट समथिंग। अब क्या है कि अगर आपके पास फैसिलिटी है, सिर्फ जिम जाने में क्या है कि आपको इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल, जिम रोज जाना प्लस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कमिटमेंट एज वेल। जा सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार, मतलब आप यू कैन डू अ मिक्स बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड हफ्ते में 1 से 2 बार हम जिम चले गए, या इवन ऑनलाइन क्लास में आपने वो वाले एक्सरसाइजेस करे जिसमें आप घर पे आप अपने पास आपने वेट्स लिए होंगे और उसके साथ करते हैं। सो मतलब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस दैट हैपन जिसमें आपकी बॉडी वेट्स एंड देन आपके जो दूसरे जो आप यू कैन बाय डंबल्स, यू कैन बाय दोस रेजिस्टेंस बैंड्स, तो ये करके आप घर पे भी कर सकते हैं। एंड नॉट ऑल, ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी से इतना डरने की जरूरत है, इंजरी टिपिकली तभी होती है जब आप अपनी लिमिट को बहुत क्रॉस करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत स्टेबिलिटी है, हमारी बॉडी बहुत कुछ बहुत पावर है बॉडी के अंदर, सो ऐसे इतनी छोटी सी उस पर नहीं होती अनलेस यू रियली पुश योरसेल्फ टू योर लिमिट्स, तब तक ये सब नहीं होती। नॉर्मली उतना कोई आसानी से नहीं करता, लोग डरते जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है जो कर सकते हो, जो आप कल से या आज शाम से शुरू कर सकते हो, आपके लिए वो सही। सो देयर इज नो राइट आंसर, राइट आंसर इज व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, मतलब लेट्स से कि आप इवनिंग में या मॉर्निंग में क्या कर सकते हो, वो राइट आपके लिए। ज्यादा मतलब कहानियों में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो क्या है कि वो बोलेगा जब परफेक्ट सिचुएशन आएगी मैं तब जिम जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज शाम से या कल सुबह से क्या कर सकते हो वो करना शुरू करो।
ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ऑडियंस के आए हुए हैं इसमें। स्टार्टिंग करते हैं हम। हेलो, हाय हाय। गायत्री जी का मैसेज आया, हेलो मैम, आई एम बिगर फैन ऑफ यू। देन Sorry, I didn't hear. सो गायत्री जी का मैसेज है, हेलो मैम, आई एम ए बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। किसका मैसेज है ये? गायत्री मुदा जी का। कौन? गायत्री। Kanitri. Okay. So now I will remember Kanitri. Thank you, Kanitri. अच्छा, श्वेता जी का क्वेश्चन है, व्हाट्स द आइडियल बैलेंस बिटवीन कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग मसल गेन्स? Yes. So very good question. In fact, that is something that we did not cover. And cardio जो है आपको हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करना चाहिए. Because cardio जो है, सी अगेन जैसे हमने बात की, जब हम मसल की बात करते हैं तो टिपिकली लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ की बात होती है, राइट? कि हमने वेट लिफ्टिंग की है. मसल की मतलब ये भी होता है मैं कितनी फास्ट भाग सकती हूँ, दैट इज मसल का वर्क. मैं कितना स्मूथ अपनी मूवमेंट कर सकती हूँ. जैसे अगेन वी स्पोक अबाउट ऑकवर्ड डांसर एंड प्रॉपर डांसर. तो वो सब चीजें, तो इसके लिए हमें अपनी मसल्स की अलग अलग तरह से यूज करना सीखना होगा. सिर्फ एक चीज नहीं करते. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ग्रोथ होनी चाहिए उसमें. ये नहीं कि वही जो 5 किलो पे थे अब उसी 5 किलो पे अटके हो. कोशिश होनी चाहिए 5 किलो की 15 दिन रहे, अब थोड़ा सा 5.5 6 तक आओ, फिर थोड़ा सा और बढ़ाओ, धीरे धीरे जहां तक, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी और आपको खुद पता चल जाएगा. क्योंकि 5 किलो पे आप शुरू तो जरूर हुए, लेकिन 1 महीने बाद लास्ट के 2 रैप में कोई आपको बर्न नहीं आ रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर. सो आपका समझ आ गया कि इसका मतलब मेरा वेट बढ़ाओ. सो आपको उसमें प्रोग्रेसिवली आगे जाना है और हफ्ते में 1 से 2 बार कार्डियो करना है. एंड कार्डियो में एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक, यू कैन डू रनिंग. आई लाइक कि नेचर में करो तो ज्यादा अच्छा, रादर देन ऑन अ ट्रेडमिल. यू कैन डू, जैसे आई लव डांसिंग एंड उसमें इतना बढ़िया कार्डियो होता है, ट्रेडमिल पे तो मैं बोर हो जाती हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक. एंड जिसमें हार्ट बीट अच्छे से ऊपर जानी चाहिए, दैट इज, एंड यू हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट. और उससे भी मेजर करो. पहले मैं डांस में एक गाना डांस करके रुक जाती थी, अब मैं 2 गाने तक पहुंच गई. दैट्स अ ट्रेंड. सो ट्रेंड आपको देखना है कि धीरे धीरे अप ट्रेंड में होने चाहिए. जैसे इसमें दैट देयर इज अ पॉइंट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल जैसे हमारा होती है बॉडी में. वन इज फास्ट मसल एंड वन इज स्लो मसल. तो जो स्लो मसल है कार्डियो उस पर काम करता है, विच इज लाइक अगर आपने देखा होगा जो मैराथन रनर्स होते हैं उनकी मसल्स नहीं दिखती आपको, वो बहुत ही पतले पतले से होते हैं, ऑल तो 42 किलोमीटर भागते हैं वो. बट जो स्प्रिंटर्स होते हैं फास्ट मसल पे काम करते हैं, दैट इज मोर ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. जैसे आप हुसैन बोल्ट को देखेंगे तो उनका लाइक 100 मीटर रन करते हैं बट अच्छे से मसल बिल्डअप होते हैं. तो दोनों का अलग रोल है बट दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें. और आपका क्या गोल है उस पे आपके चीजें काफी डिपेंड करेंगी. सी आई लाइक कि मुझे लाइफ में कोई दिक्कत ना हो. सी मेरा गोल सी 42 किलोमीटर भागना इज नॉट माय पर्पस इन लाइफ, या 21 किलोमीटर भागना इज नॉट माय पर्पस. जिम में 100 किलो उठाना इज नॉट माय पर्पस. माय पर्पस इज कि जब जिम खत्म हो गया, जब एक्सरसाइज खत्म हो गई, मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है उसमें मेरी परफॉर्मेंस ऊपर होनी चाहिए. तो आपकी क्या आपका लाइफस्टाइल है, आपके बच्चे कितने छोटे हैं, कितना आपको उनके साथ भागना पड़ता है, कितना आपको उनके साथ एक्टिविटीज करनी पड़ती है. मे बी यू आर अ डांस टीचर, डिपेंडिंग अपॉन आपका एम क्या है. इज माई एम मुझे अपना स्टेमिना बढ़ाना है, या इज माई एम मुझे कभी जैसे पत्थर उठा के रखने हैं, मैं कंस्ट्रक्शन बनकर, राइट? तो डिपेंड करता है कि मेरा एम क्या और गोल क्या है, और उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए. Then विशाखा जी पूछ रही हैं that ma'am does muscle mass help in decreasing belly fat? When does muscle mass? Automatically. मतलब does muscle mass help in decreasing belly fat? So एक मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रही थी और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. वो डॉक्टर है, यूएस के डॉक्टर है, उनका स्टेटमेंट सुन रही थी कि एज अ जो इस टाइम हमारी जो हम लोग हैं, वी आर नॉट ओवरवेट, वी आर अंडर मसल. हम लोग ओवरवेट नहीं है. अगर आप अपने डाइट में, अपने खान पान में थोड़ा सा इस चीज के लिए कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे अपनी मसल्स को ग्रो करना है, both through diet and both through working through resistance training and various other forms of which we discussed, तो आपकी मसल्स जब ग्रो होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैट का परसेंटेज है वो कम होना शुरू होगा.
एंड रही बात बेली फैट की, तो बेली फैट इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैट, एंड जैसा हमने पहले की अपनी डिस्कशन में भी देखा है, वहां पर सबसे बड़ा रोल स्ट्रेस का होता है. Correct. तो अगेन दैट्स व्हाई वी हैव मिक्स्ड मेडिटेशन क्लास इन द जिम सेशंस, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है, आप जिम में भागते जा रहे हो, कितने लोग दिखते हैं कार्डियो करे, वजन कहीं नहीं जा रहा, एज इट इज, 1 साल हो गया एज इट इज, एंड देन जैसे जिम से कुछ होता नहीं है. भाई चाबी जो लगानी थी आप गलत चाबी लगाए जा रहे हो, या जो आपके लिए जो चाबी थी आपने वो तो लगाई. एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मिक्स ब्रेथ वर्क, माइंड वर्क एंड बॉडी वर्क. All three need to happen because I don't know in your particular case कौन सी चाबी लगेगी. इसके लिए तीनों पे ही वर्क कर लो. Anyway अगर वो पहले से अच्छा था तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर बंद था तो खुल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. धनप्रीत जी का क्वेश्चन है, विच प्रोटीन इज बेस्ट फॉर मसल गेन? Which protein? See, प्रोटीन जो आपके लिए, जो जैसे अभी हमने बहुत सारे सोर्सेज की बात की कि जैसे आपकी दालों के स्प्राउट्स होते हैं, आपके नट्स एंड सीड्स के स्प्राउट होती हैं, आपके राजमा चावल, वेरी गुड, आई लव देम, राइट. सो ये Everybody अगर loves आपके rajma chawal. क्या I'm saying everybody loves rajma chawal in India. है, And और mostly उसमें everyone. क्या कि जब हम एंड प्रोटीन में भी ना आप एक चीज ध्यान देना, अब क्या है, कुछ नई रिसर्च ऐसी आ रही है. पहले हमें लगता था कि ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मतलब इसका मतलब है हमें ये लेने ही पड़ेंगे बाहर से, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बना नहीं पाएगी. कुछ नई इस टाइम स्टडीज चल रही है, क्योंकि कई लोगों को देखा गया ये तो ले नहीं रहे वो जो सोर्सेज कंप्लीट प्रोटीन के, लेकिन इनके मसल्स तो बरकरार है, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. उनको स्टडी किया जा रहा है कि ये ऐसे क्यों है. तो उसके अंदर आंसर कहाँ से निकल रहा है, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, आपके गट माइक्रोबायोम से. आपने बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर रखी हैं. तो अगर आपका गट खुश है, यानी कि आप बहुत सारे फाइबर्स खा रहे हो रेनबो कलर, तो हो सकता है वो आपके लिए ये काम कर देते हैं. लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, बट दिस इज अंडर स्टडी बिकॉज देयर आर पीपल हु आर, यू नो, जैसे आपको लगेगा ये तो वो ट्रेडिशनल कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खा नहीं रहा है कुछ, लेकिन मसल एकदम बढ़िया है इसकी, तो उनके ऊपर स्टडीज हो रही है क्योंकि वो फाइबर बहुत खाते हैं. और फाइबर खाते हो तो उससे आपका गट माइक्रोबायोम खुश होता है, और गट माइक्रोबायोम खुश होता है आपके लिए काम करके देगा वो. और वो जो असेंशियल जिसको आप सोच रहे हो वो शायद इतना असेंशियल नहीं है कि वो बना देगा. तो इन सब चीजों में क्या है, बैलेंस लेके चलना है. तो अगेन प्रोटीन पाउडर की बात करें तो आई विल से कि फाइबर्स खूब सारे खाओ, लिक्विड भी खूब सारा लो, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए लिक्विड लगता है. एंड देन ट्राई कि जितने नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उनको ज्यादा से ज्यादा डाइट में इनकॉर्पोरेट करो, खासकर जो स्प्राउटेड है. नट्स अगर आप ऐसे ही खाओगे वर्सेस आपने रात को भिगो दिया है और मॉर्निंग में खा लिया, दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत फर्क है. जब आपने दाल को ऐसे ही खाया बिना उसको ज्यादा कुछ लाइक यू नो भिगोया भी नहीं, उसको प्रेशर कुक भी अच्छे से नहीं किया, कच्ची कच्ची है, वर्सेस मैंने एक दिन पहले भिगोया था, अगले दिन मैंने प्रेशर किया, पूरा अच्छे से गल और फिर खाया, दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत फर्क है. तो आप खाली वो एक कटोरी के 15 ग्राम और एक कटोरी के 12 ग्राम नहीं देते, आप ये देखो ये 15 ग्राम कभी आपको लगने ही नहीं वाला, और ये 12 ग्राम में से 8 लग जाएगा. सो आपको नेचुरल, आई थिंक इसके ऊपर वी शुड डू अ कंप्लीट एपिसोड जहां पे वी शुड यू नो गिव देम लाइक यू नो maybe top 10 or top 20 which Indians can easily incorporate complete sources of. And because I think you are a gym person, so you can also do that. हाँ, what we will do is कि हम इसको नोट कर लेते हैं अभी, and नेक्स्ट टाइम इसको अलग से एक पूरा टॉपिक बना लेंगे इसके ऊपर. एंड अभी हम फटाफट कवर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास एंड टाइम है हमारे पास कम. Sure. Now one slide आता. हाँ ठीक है. What role do rest and recovery play in building muscle mass? Very important, very important. You have to ensure कि जब आप अपना नेक्स्ट सेशन कर रहे हो, पुराने वाले की रिकवरी हो गई है, रिकवरी के लिए बहुत सारे क्विक टिप्स भी होते हैं. लाइक आपको सोना अच्छे से, नींद अच्छे से नहीं होगी, सोना अच्छे से मतलब ये 10 से 2 की नींद सबसे बढ़िया आपको मसल रिकवरी प्रोड्यूस करके देगी. क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि रात को 10 से 11 के बीच में प्रोड्यूस होते हैं. अब आप सोए नहीं, प्रोड्यूस हुए नहीं, लगे रहो जिम में. तो उसके लिए रेस्ट जो है, रेस्ट एंड रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप इज बेडरॉक ऑफ एवरीथिंग. स्लीप गड़बड़ तो ऊपर की सारी इमारतें गिरेंगी. फाउंडेशन है. और जल्दी सोना,
मतलब रात को अगर आप लेट सो रहे हो तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिस हो गई। अगर गाड़ी ठीक है, छूट गई नेक्स्ट। आपको लेट सोना छूट चुकी है अभी पीछे भागो उसके। How does muscle building help in insulin resistance? And what are the best exercise for people over 60 to improve muscle health? सौरभ यस, जी पूछ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मसल जो आपकी बिल्डिंग होती है, जो आपकी स्केलेटल मसल है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत बढ़िया रोल अदा करती है। इनफैक्ट अगर आपका मसल कॉम्पोजिशन अच्छा है तो चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। जो मसल होती है वो अपने आप में एक ऑर्गन है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का पूरा सिस्टम चेंज कर देती है आपकी। तभी हम कहते हैं ना, जैसे अगर आपने खाना खाया, आपने रात को डिनर किया, उसके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आप वॉक करो। क्यों? क्योंकि काफ मसल्स जो होती हैं आपकी, वो स्पॉन्ज है ग्लूकोज के लिए। तो जो आपकी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने वाली होती है, काफ मसल खींच लेती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए या डायबिटीज वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि उनकी बॉडी में मसल्स बढ़े। अब वो कैसे करें? सबसे पहले तो वो अपनी डाइट चेंज करना शुरू करें। कार्ब हैवी से थोड़ा सा आपको एक बैलेंस डाइट में जाना पड़ेगा। यदि हम प्रोटीन हैवी बनने की कोशिश भी करेंगे ना, हम आसानी से बन नहीं पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर बार प्रोटीन के बारे में सोचो और हम जो ले रहे हैं उसमें सोचो। एंड आपको किसी अच्छे क्लास में ज्वाइन करना चाहिए, किसी अच्छे ऑनलाइन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते। और वहां पर छोटे छोटे डंबल्स के साथ, सिंपल रेजिस्टेंस बैंड के साथ किसी टीचर की सहायता से शुरू करना चाहिए। इसी के लिए साथ में जी के खुराना जी ने भी कहा हुआ है, शुगर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन मसल्स फॉर इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फॉर दिस गुड मसल मास इज मस्ट। यस, एंड उसके बाद नुमा जी कह रही है लुकिंग ब्यूटीफुल। आई थिंक आपको ही कह रही होंगी। आपको भी कह सकती हैं वो। मैं उनको तो पूछ हैंडसम लो कहेंगे, मुझे एग्जैक्टली हैंडसम कहेंगे ना मुझे तो। अच्छा ओके, हाँ ये बात सही है। शी हाँ हाँ करेक्ट। आई होप हर इंग्लिश इज गुड, सो ब्यूटीफुल तो गर्ल की। राइट, सो जय कह रहे हैं दैट what are the some high calorie food that won't make my wallet cry or taste buds revolt? क्या क्या? What are some high calorie foods that won't make my wallet cry or my taste that bud would make my what? अच्छा, wallet वॉलेट cry? क्राई। अच्छा ओके हाँ, ओके ओके। और बट मे बी टेस्ट बट रिवोल्ट, मतलब या तो हमारा एक तो हमारा खाने में भी अच्छा हो एंड जे पे भी भारी ना हो। केला खाओ, बढ़िया हाई कैलोरी, सस्ता, टिकाऊ। तो मतलब फ्रूट इसमें वही है, जैसे आप पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, जो भी सीजनल है, रीजनल है और प्राइस विद इन रीजन है, वही खाओ। इधर उधर का जो ज्यादा इंपोर्टेड खाना खाना है ना, उसमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है। जो हाई प्राइस होता है ना, देखो वही मार्केट बनती है। जो सस्ता बेचारा फ्रूट है उसमें कोई मिलावट ज्यादा एक्चुअली केले में वैसे होती है, जस्ट टू बी फेयर, एंड वी शुड डू अनदर एपिसोड ऑन केला अलोन, बिकॉज केले में भी देयर आर साइंस यू कैन वॉच आउट फॉर कि इसमें मिलावट नहीं होती है। मतलब उसके एक सर्टेन वे में होता है, अगर मेरे पास होगा तो नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। एंड बट यस, सो आप फ्रूट्स ले सकते हो, हाई हाई कार्ब्स, हाई कैलोरी, एंड अच्छे भी हैं, हेल्दी भी हैं। और सीजनल लोगे, रीजनल लोगे तो सस्ता होगा। ज्यादा इंपोर्टेड वाला चाहिए भाई, दुबई का ये चाहिए, दुबई का होता है, हमें जैसे होता है ना स्पेशल ब्लूबेरीज फ्रॉम हेयर, या चाइना का एप्पल चाहिए। भाई चाइना का एप्पल क्यों चाहिए? चाइना से एप्पल शिप में आ गया 2 महीने पहले। तो यू रियली थिंक उसमें कुछ बचा है? लोकल लो जो आपके 100 किलोमीटर की रेंज से आता है, वो सस्ता भी होगा, आपके लिए अच्छा भी होगा, और आपके जो बैक्टीरिया है ना उसको अच्छा पचा पाएंगे, क्योंकि वो भी इसी रीजन के बैक्टीरिया है। चाइना से प्रियंका, इस बैक्टीरिया पे हम अभी खत्म करते हैं, नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अब विनर्स के नाम हम बता देते हैं। ऑनलाइन आप ऐसे करते हैं, ऑफलाइन में वी हैव चूजन वन इरफान, एंड ऑनलाइन में आप बता दीजिए अभी साथ में किसको अवार्ड देते हैं। आप बताइए। आई थिंक श्वेता वाला क्वेश्चन वाज गुड, दैट अबाउट कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो हमने पॉइंट कवर भी नहीं किया था। So we'll go with Shweta here and Irfan in the offline. So इन दोनों को Amazon watchers इनके मिलेंगे, and very good, and thank you so much for this session. Next time guys do comment कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, so that हम next week में वो टॉपिक कवर करेंगे। And thank you so much Priyanka, it was fun, and hopefully सबके लिए बहुत knowledgeable भी होगा। I will see you next week. Right. Yes. Bye bye everyone, and happy birthday of muscle mass, and we are there in this journey with you, and we will ensure कि आप जो जो चीजें हैं, जो जो क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज लिखिए, हम किस और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक आए, and we will be more than happy to talk to you and guide you in the process
एंड जहां भी आप अटकेंगे वी आर देयर. Okay, bye bye.